Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, before start my reading, I will show you two pictures. First picture is of map, so you can understand more that what is map. And second picture is of globe, so you can understand that what is globe. Okay, now after looking this picture, I will give you definition of a map. A map is a visual representation of an area of the earth, represent on a flat surface. मतलब कि मैप क्या होता है? तो मैप एक एरिया का रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं। इस तरह का एक फ्लैट यानी कि सीधी सरफेस पर कोई भी चीज़ का पिक्चर होता है, उसको हम कहते हैं मैप. Second, a globe is a three-dimensional spherical model of the earth. Means ग्लोब क्या होता है? तो वो एक गोलाकार स्फेरिकल मॉडल यानी नमूना होता है, एक गोलाकार चीज होती है जिस पे पूरी अर्थ को दिखाया जाता है. वो थ्री डायमेंशनल शेप भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, नाउ यू कम टू नो that what is map and what is globe. Okay, so now I will start my reading. Maps and globes. The world where we live in is a huge, and we do not know all the routes, landmark, etc. Thus, to keep us aware of all the cities, states, countries with their respective routes and landmark, we use map and globes. Maps and globes help us to locate places anywhere in the world. So in this paragraph, we come to know that how the maps and globes is useful to us, because maps show different routes, landmark, and more about cities, states, countries which were located in the world. So in this way, if we will take help of map and globe, then it is easy to know about any place in the world. Students, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ा है और हमें हर जगह का लोकेशन नहीं पता है, उसके रूट नहीं पता है कि वहाँ तक हम कैसे पहुँच सके. वहाँ तक पहुँचने के लिए, कोई भी प्लेस पे पहुँचने के लिए अलग अलग चिन्ह यानी कि लैंडमार्क होते हैं, तो वो भी हमें नहीं पता होते हैं. मगर मैप की मदद से या ग्लोब की मदद से हम किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री
को आराम से जो है जान सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं इन मैप और ग्लोब की सहायता से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लैंडमार्क होते हैं, चिन्ह होते हैं, निशानी होती है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो है कोई भी जगह पर आसानी से पहुँच सकते हैं। मैप्स। A map is a visual representation of an entire area or a part of an area, typically represented on a flat surface. Map can show the different type of lands, natural resources, climatic condition, railways, roadways, etc. Thus, a map shows the structure of the earth on a flat surface. As you already come to know that what is map. In simple words, we can say that a map is a picture on a flat surface of any area. Okay, so map can be of different types. They show natural resources, means which type of forest, animals, land, minerals particular area has, particular climatic condition, about the railways, about the roadways, etc. So we can have a different type of maps. So students, दूसरे पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि मैप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैप है कोई भी एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है, मगर वो एक फ्लैट सरफेस पर दिखाया जाता है, जिसको है हम खोलकर देख सकते हैं। जैसे कि ग्लोब है वो गोल होता है, मगर मैप है वो फ्लैट सीधी सरफेस पे दिखाया जाता है कोई भी एक एरिया के बारे में, या कोई भी छोटी सी एरिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैप कई प्रकार के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को बताते हुए मैप होते हैं, कोई भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को बताता है, रेलवे रूट्स को, रोड रूट्स को, या फिर रिवर्स को, माउंटेन को, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मैप्स। Maps can be of three types. First, political maps. They are designed to show the governmental boundaries of countries and states. They also indicate the location of major cities and significant water bodies. Now, what do you mean by political map? This map particularly show the governmental boundaries. Governmental boundaries means what? The boundaries which were decided by our country. Okay, so this map show our country's boundaries, state boundaries, as well as cities and towns. In this map, we can also see the connected water bodies. पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि इस मैप में कोई भी देश की सीमा यानी कि बाउंड्रीज होती है वो हमें दिखाई जाती है। इस कंट्री के अंदर जो स्टेट्स होते हैं उस स्टेट की बाउंड्री को भी दिखाई जाती है, और स्टेट के अंदर जो कैपिटल्स होते हैं उनकी सिटीज़ होती है उसे भी दिखाया जाता है।
और उस कंट्री के आसपास जो वाटर बॉडीज़ होती है, सी होते हैं, ओशंस होते हैं, वो भी इस मैप में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल मैप्स। दे आर डिजाइन्ड टू शो लैंड फॉर्म लाइक डेजर्ट, माउंटेन and plains. In physical map, we can see the landform. Landform से क्या समझते हैं? Landform means on the earth we see many things like forest, river, mountain, coastal area, desert, plateau area. All things will come in landform. So when we see or when these things locate on the map, this type of map is known as physical map. ओके, तो फिजिकल मैप मतलब जो ज़मीन पर कई चीज़ें जो दिखती है हमें उसको दर्शाया जाता है, तो उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। जैसे कि नदी, पहाड़, समुंदर का किनारा, आइलैंड। ओके, तो इस तरह से जहाँ पे बाउंड्रीज होती है और सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज़ होती है, यानी कि मेन वाटर बॉडीज़ होती है और बाउंड्रीज को दिखाते हैं, तो उसको तो हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और जहाँ पे अलग अलग लैंड फॉर्म को दिखाया जाता है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। तो इस तरह से आपको फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से याद रखना है। थर्ड टाइप of map is thematic maps. They are designed to give specific kind of information like roads, vegetation, rainfall, population, soil type, etc. In thematic map, we come to know specific kind means special, खास, विशिष्ट प्रकार के जो मैप होते हैं जो एक खास चीज़ को दिखाते हैं। दिस टाइप ऑफ मैप इज़ नोन एज थैमेटिक मैप। इन दिस टाइप ऑफ मैप वी कैन सी अबाउट रोड्स, अबाउट रेलवे रूट्स, अबाउट रेनफॉल, अबाउट पर्टिकुलर सॉइल, अबाउट पॉपुलेशन, और वी कैन से climate, etc. सो थैमेटिक मैप में क्या होता है बच्चों कि इस तरह के मैप में कोई ख़ास चीज़ को बताने के लिए ये मैप बनाया जाता है। कोई ख़ास रोड का रूट हो, कोई ख़ास जगह की वेजिटेशन यानी कि वनस्पति के बारे में बताते हैं, रेनफॉल के बारे में बताया जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताया जाता है, वाटर करंट के बारे में बताता है कोई मैप, कोई जगह की सॉइल है उसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो ऐसा मैप जो कोई ख़ास विषय पर बनाया जाता है, ख़ास चीज़ को दिखाया जाता है, उसको कहते हैं थैमेटिक मैप।